Now, sense of collective belonging. What do you understand by this? This means that until and unless we all were not united, clear? Collective means coming together. Until and unless we did not join hands or we did not join the freedom struggle together, clear? We will not be successful. So we have already read that what were the different movements which were started by Mahatma Gandhi, clear? To make the people aware that we need to fight. Now, besides this, what else was being done to bring that spirit of nationalism among the people? Now, why we are talking about spirit of nationalism? Spirit of nationalism means that until and unless I am not having that feeling of patriotism. Patriotism means of belonging to my country. Clear? Having a feeling that I belong to my country, that I love my country. I need to work for the freedom of my country. That feeling of patriotism. Clear? Until and unless we do not have that feeling of patriotism amongst us, clear? I cannot work for my country. Clear? When you read about Bhagat Singh and other freedom fighters, we know that at a very tender age means that he was very young, clear, when he jumped into the freedom struggle, and at a very young age he was hanged to death, but he was very happy that he is dying for a cause, clear. And his speeches, the text written, the matter written by, and the way he used to think, Bhagat Singh, it till now, it motivates us. आज तक भी हमें वो मोटिवेट करता है. वो हमें मोटिवेट क्यों करता है? क्यों हम भगत सिंह के कितनी मूवीज बनी, क्यों उसके ऊपर सॉन्ग्स बने? Because he is a person who is motivating us. तो हम किसी को मोटिवेट तब कर सकते हैं जब हम खुद पहले मोटिवेट हों. I should have that feeling of patriotism in me. So collective belonging means that I have to feel for my country. I should belong to my country. Then only I can fight for my country. Clear? So nationalism spreads when people began to believe that they are part of a same nation. When they discover some unity that binds them together. But how did the nation become a reality in the minds of the people? Now, from the beginning lines only, it's very clear that how we were staying in one country since ages, but our country was divided by different rulers. ठीक है, कहीं पर मुगल डायनेस्टी थी, हमने पढ़ा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में किसी और किंग्स का था, पंजाब और इस तरफ लाहौर की तरफ महाराजा रंजीत सिंह रूल कर रहे थे, सिख डायनेस्टीज वर देयर, सिख रूलर्स वर देयर, साउथ में बिल्कुल डिफरेंट रूलर्स थे. And people used to see themselves as belonging to that particular king only, belonging to that particular province only. They were not united or considering themselves as one belonging to one country, that is India. So this sense of collective belonging came partly through the experience of united struggle. तो इसमें हमें एक ब्रिटिशर्स को पॉजिटिव पॉइंट देना पड़ेगा that they initiated the means of communication and transport. Means of communication and transport के advancement के कारण क्या हुआ? जो हमारा पहले communication gap था, we did not have advanced means of communication, clear? वो अब easy हो गया. हमारे जितने भी freedom fighters थे, they could now easily send messages across to the people all over the country. And now they could also travel from one place to another, right, to motivate the people. We know that they were doing openly, एक struggle हमारी openly भी चल रही थी, but besides that we had some secret societies also.
क्लियर, विच वर वर्किंग फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। उसके साथ हमारे जो ये पैम्फलेट, स्लोगन्स, इनकलाब जिंदाबाद, जो हमने सैफरन कलर को अडॉप्ट किया, जो हमने एक भारत माता की इमेज बनाई, जो हमने एक अपनी कंट्री के लिए फ्लैग डिजाइन किया, ये सब क्या था? ये था एक लोगों में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल भी दिया था कि एक हम यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए अब हमने क्या करते हैं, हमने जो है जैसे जो सारे फार्मर्स हैं वो ग्रीन कलर की टर्बन बांधते हैं, जो वहां पर लेडीज ने स्ट्रगल ज्वाइन की हुई है, दे जनरली सी दैट दे आर वेयरिंग ऑरेंज कलर दुपट्टास, राइट? सो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अपने आप में यूनिटी शो करने के लिए। वैसे तो हम वी आर स्टैंडिंग फॉर द कॉज, बट उसके साथ साथ हम कुछ सिंबल्स भी हैं जो हम यूज करते हैं अपनी यूनिटी शो करने के लिए, साथ में सॉन्ग्स को यूज करते हैं, राइट? Besides these, you have read the role of Swami Vivekananda and other such great personalities who gave the slogan back to the Vedas. So back to the Vedas means that we are having such rich culture. हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है, वी आर वेरी मच इंटेलिजेंट सफिशिएंट। कुछ ऐसी इन्वेंशंस हैं जो शुरू से इंडिया में हुई थी, ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, दैट द मसलिन, द स्पाइसेस, द कंसेप्ट ऑफ जीरो, इट ऑल ट्रांसपोर्टेड वेंट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब क्या था? Why we should feel that we are someone's slave, that why we should feel that we are not good, clear? तो इन सब चीजों को रिवाइव करने के लिए डिफरेंट जो मेथड्स अडॉप्ट किए गए, क्लियर, उसमें चाहे कलर है, चाहे सॉन्ग है, चाहे पेंटिंग्स हैं, सो इन सब चीजों को मिला के, चाहे मैंने बोला आपको यहाँ पर आप पढ़ोगे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। री इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? हमने हिस्ट्री तो पढ़ी है, बट री इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि हम अब दोबारा उसको पढ़े, दोबारा पढ़ के हम ये देखें कि वी हैव सच ग्रेट पर्सनालिटीज, क्लियर। अब हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में दोबारा पढ़े, और आज तक हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को, अपनी जो हमारी फ्रीडम है कंट्री की, उसको हमने किससे कैसे बचा के रखा है? हमने इसलिए बचा के रखा है, क्यों? क्यों कि हम वी फील प्राउड, ठीक है, we feel proud. You will read one line, we say martyrs commemorated. Martyrs commemorated का मतलब होता है कि उन शहीदों की याद में, मार्टियर्स कौन होते हैं? जो शहीद हो जाते हैं हमारे किसी देश के लिए। मार्टियर्स कोमेमोरेटेड, कि उन शहीदों की याद में मेले लगते हैं, ठीक है, उनके हम बर्थ एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्यों? क्योंकि हम उनके सेक्रीफाइस को याद करके आज की जनरेशन को मोटिवेट करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? सो इन दिस पैराग्राफ वी वर, so now next is the identity of the nation. Clear? Identity of a nation. They have given the reference of chapter 1, so that we will doing. I told you that rise of nationalism in Europe is most often symbolized by figure or a image. अब जैसे ये भारत माता की इमेज पेज नंबर 71 पे बनी हुई है, ये एक हमारी इमेजिनेशन होती है, ठीक है। When we go to temples or we worship an idol, हम एक किसी मूर्ति की, हम एक इमेज हमारे मन में बन जाती है। इसी तरह अपनी कंट्री को, क्लियर, हमने एक भारत माता की इमेज दे दी। अब हम जो है अपनी कंट्री को हमेशा हम एक फीमेल फिगर में क्यों देखते हैं? ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो हम किंग्स थे, डेस्पॉट्स थे, मोनार्क्स थे, उनको हम थोड़ा हार्श से देखते हैं, मदर को हम थोड़ा सॉफ्ट उससे देखते हैं। तो जो हम मदरलैंड होता है, एक हम अपनी एक फीलिंग के साथ उसको देखते हैं। और उस टाइम पे लोगों से ये भी हटाना था कि ये जो मोनार्क्स हैं, ये बहुत लाइक दे आर नॉट वेरी गुड विद देयर सब्जेक्ट्स। जैसे अब हम औरंगजेब की बात कर लेते हैं कई बार, तो हम देखते हैं, या अदर रूलर्स की बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि दे वर नॉट वेरी काइंड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, नॉट ऑल मोनार्क्स। तो इसलिए एक फीमेल फिगर को जो था, उसको उसकी सॉफ्टनेस और उसमें ज्यादा फीलिंग्स होने के कारण
ठीक है, हमने एक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब हम बाद में ये यूरोप में भी पढ़ेंगे, हम जर्मेनिया के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, हम ये पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने भी, जैसे हमने एक भारत माता की इमेज को लेके लोगों में वो नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने की कोशिश की, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में भी ये हो रहा था, बट इट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. We'll read further here, right? So many of the, this helps to create an image with which people can identify. ठीक है? It was this 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visualized and associated with the image of Bharat Mata. अब जैसे हम किसी भी गॉडेस के बारे में सोचते हैं, जैसे हम गॉडेस सरस्वती के बारे में सोचते हैं, एक हमारे में इमेज आ जाती है, क्लियर, एंड वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग, हम उसी इमेज को सोच के चलते हैं. नेक्स्ट इज द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय, इसमें दो चीजें हैं, एक है क्रिएटेड, क्रिएटेड मीन्स कि सबसे पहले किसने इस इमेज, भारत माता की इमेज के बारे में किसने सबसे पहले सोचा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अंडरलाइन दिस, ठीक है. फर्स्ट क्रिएटेड, क्रिएट किसने की सबसे पहले, उसको एक नया सा एस्पेक्ट भारत माता का किसने क्रिएट किया, वो बंकिम चंद्र ने किया. एंड द इमेज in the 1870s he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. hymn का मतलब होता है कि कुछ एक बड़ा ही डिवोटेड और पायस सा सॉन्ग जो होता है उसको हम hymn कहते हैं, क्लियर. एंड लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन द नॉवल अनंत मठ. इसमें जो छोटे छोटे एमसीक्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज कीप ऑन अंडरलाइनिंग साइड बाय साइड. And it was widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. Vande Mataram हमें पता है कि it's such a song, जब हम सुनते हैं तो it gives us goose pimples, हमारे अंदर सारी emotions, nationalism and patriotism की आ जाती हैं. Moved by the Swadeshi movement, Abhindranath Tagore painted this famous image. अब create किसने की थी, बंकिम चंद्र ने, और पेंट किसने की, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. कई बार जब क्वेश्चन आता है तो सो दैट टाइम द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, सो यू हैव टू रिमेंबर इट, क्रिएटेड एंड पेंटेड. इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज अ एस्थेटिक फिगर. ये मींस कि एक बड़ी सेंटली सी फिगर के बारे में, शी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट व्हाई वी सिलेक्ट अ फीमेल फिगर. नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव टू दैट नेक्स्ट पैराग्राफ. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. And what is folklore? Folklore का मतलब होता है हमारी पुरानी गाथाएं. folk हम generally word use करते हैं to identify with people, लोगों के बारे में, folk, clear. But एक folk word हम उससे साथ भी हमारे culture, जैसे हम कहते हैं what is the folk dance of Punjab, we always say भंगड़ा and गिद्दा, ठीक है ना. तो इसी तरह folklore का मतलब होता है कि पुरानी चली आई गाथाएं, क्लियर, स्टोरीज, क्लियर. एक आपने पंजाबी का सॉन्ग आता है, आपने सुना होगा कई बार, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ फोकलोर, कि आटे दी चिड़ी, ठीक है. अब आजकल आटे की चिड़ी कौन बनाते हैं, आजकल तो आपके पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स पे आप गेम्स खेलते हो, तरह तरह के ये है वो. जब बहुत पहले के टाइम होता था, जब बच्चे होते, छोटे बच्चे होते थे, उनके पास कोई ऐसे मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होते थे, तो उस टाइम पे वो क्या करता होता था कि अपने दादी नानी के पास बैठे होते थे ना, तो वो आटा गूंद रही थी, जहाँ चपातियां बनाती होती, तो साथ साथ में वो छोटी छोटी फिगर्स आटे की बना के बच्चे को दे देती होती थी टू प्ले विद, ठीक है. आटे दी चिड़ी, आटे दी चिड़ी का मतलब है कि जैसे उसके साथ उसकी फिगर बना दी और वो बच्चे को खेलने के लिए दे दी साथ में. जैसे अब आप छोटे होते क्ले से बनाते हो ना, क्ले से, तो पहले वो क्ले का कंसेप्ट नहीं होता था, तो वो बच्चे छोटे छोटे जो होते थे, जो आटा गूंदा होता था उसी के साथ बना लेते थे. तो हमें आज तक बाय वर्ड ऑफ माउथ हमारी ये जो गाथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, ये आज तक हमारे पास कैसे पहुंची, ठीक है, कहाँ से पहुंची, क्लियर, फ्रॉम बाय वर्ड ऑफ माउथ, from our parents, from our grandparents, from our great grandparents and so on, ठीक. तो सोसाइटी में आजकल तो अब हम लोग लाइक अब तो कोरोना की कंडीशंस हैं, बट अर्लियर इफ यू हैव नॉट सीन दैट there used to be so many people who used to go around, especially in the rural areas, in the villages, singing and
crowd used to gather around them. और वो गा गा के सबके बारे में बताते होते थे about great personalities के बारे में. And you know that गुरुकुल की जो हमारी प्रथा थी, गुरुकुल की हमारी प्रथा क्या थी? वो भी यही थी हमारी गुरुकुल की प्रथा कि by word of mouth. क्लियर? जो गुरु होते थे वो शिष्य को सिखाते थे और वो आगे फिर फर्दर वो नॉलेज पास ऑन होती रहती थी. In the late 19th century, nationalists began recording folklores, tales sung by the bards. जो लोग होते हैं जगह जगह घूमते हैं, गाते हैं और लोक कथाएं और इनकी स्टोरीज के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, सुनाते हैं. बिकॉज एट दैट टाइम वी नो एवरीबडी वाज नॉट लिटरेट. लिटरेसी बहुत देर में आई, ठीक है. आर्ट ऑफ राइटिंग भी बाद में आई. तो जो लोगों का एंटरटेनमेंट जो होती थी वो किससे होती थी? वो इसी से होती थी कि वो जहां पर ये लोग घूमते थे, जाते थे, जगह जगह विलेजेस पे रुकते थे और लोग सब उनके आसपास इकट्ठे होके बैठ जाते थे और वो उनसे सुनते थे. ये हम एक चैप्टर है आपका हिस्ट्री में, प्रिंट कल्चर. जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, देन ऑल्सो यू विल कम टू नो. दैट्स व्हाई आई टेल यू कि अपना चैप्टर तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है. जो साथ में आपकी हिस्ट्री के और बुक में चैप्टर हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. So whenever you have time, you should try and read them as a casual reading only. These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture and had been corrupted and damaged by the outside forces. तो जो हमारा culture था, हमारी great heritage थी, क्लियर, दिस वॉज बीइंग टार्निश्ड. टार्निश्ड का मतलब होता है कि हमारी इमेज को खराब किया जा रहा था, हमारे कल्चर को खराब किया जा रहा था. तो इस बार इसलिए हम कह रहे थे री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री और बैक टू द वेदास. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and to restore a sense of pride in one's past. Clear? So we are reading about that how. Now move on to the next page, that is on page number 72. So we have further that description of how through various writings also the same message was being conveyed to the people. Then the Gandhian, how Mahatma Gandhi first of all designed the flag, then it was redesigned again. Then creating a feeling of nationalism through reinterpretation of history. This I have already told you. And that's about all. So about the chapter and the explanation. So with this, we complete the chapter.